G20 সামিট উপলক্ষে প্রস্তুত শিলিগুড়ি। ইতিমধ্যেই প্রায় সমস্ত প্রস্তুতি শেষের দিকে। শুক্রবার এই সামিট নিয়ে শিলিগুড়ির নিউ চামটায় অবস্থিত মে ফেয়ার রিসর্টে একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় পর্যটন দপ্তরের সেক্রেটারি অরবিন্দ সিং। এদিন তিনি জানান, এই সামিটের মধ্য দিয়ে উত্তরবঙ্গ পাহাড় বিভিন্ন জায়গার যে ঐতিহ্য এবং ইতিহাস রয়েছে তা বিদেশি প্রতিনিধিদের সামনে তুলে ধরা হবে। আগামীকাল অর্থাৎ শনিবার সকালে চার্টার্ড বিমানে করে তারা শিলিগুড়ি এসে পৌঁছবেন। সেখান থেকে সরাসরি তারা চলে আসবেন নিউ চামটার এই রিসর্টে। সেখান থেকে তারা কার্শিয়াংয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। তারপর মকাইবাড়ি চা বাগান এবং বিভিন্ন জায়গা ঘুরে সন্ধ্যাবেলায় চা বাগানে চাঁদের আলোর মাঝে চা পাতা তোলার সৌন্দর্য বিদেশি প্রতিনিধিদের সামনে তুলে ধরা হবে। রাতে সেখানেই খাবার খেয়ে শিলিগুড়িতে তারা ফিরে আসবেন। পরদিন শিলিগুড়ির ওই রিসর্টেই রয়েছে নানান অনুষ্ঠান। সেদিন উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু বিষয় প্রজেক্টরের মাধ্যমে সকলের সামনে তুলে ধরা হবে এবং সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে পর্যটন ক্ষেত্রে আরও উন্নয়ন কি করে করা যায় সেই সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করা হবে। ৩রা এপ্রিল দার্জিলিংয়ে যাবেন প্রতিনিধি দল। দার্জিলিংয়ের ঘুম স্টেশন, বাতাসিয়া লুপ, রাজভবন ইত্যাদি ভ্রমণের পর সন্ধ্যায় শিলিগুড়ি ফিরে আসবেন তারা। ৪ঠা এপ্রিল শিলিগুড়ির বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে ফিরে যাবেন বিদেশি প্রতিনিধিরা। Tour Operators Association, the International Adventure Tour Operators Association Vice President will be joining us along coming to attend this meeting. This will focus on the global perspectives on adventure tourism, how other countries are meeting the challenges, and most importantly, Eastern states will present the adventure tourism opportunities that exist in those states and what are they doing to further promote and develop for tourism sector, which include green tourism, digitalization, skills, tourism MSMEs, and destination management were endorsed by all countries are working. UNWTO is our knowledge partner for assisting us in preparing, which is a Goa roadmap and action plan for tourism as a vehicle for achieving SDGs, and a ministerial communique which will be released at the end of the ministerial meeting. A few centers, but consciously the government of India decided that if we have to showcase different parts of India, we have to take the meetings to different parts of the country, and that's why more than 55 locations, almost 59 locations have been selected for the 200 meetings, so that delegates from all over the world get a flavor of the local heritage, the local culture, the local tourist products that are available in all these centers. Similarly, for the tourism working group, we are scheduled to have 4 meetings. So we selected one in each region of the country. The first meeting happened in the western part of the country in the run of Kutch from 7th to 9th February, and that was a successful meeting. All our priorities were endorsed, and we saw very active participation by the G20, the invited countries, the member countries, and the international organizations. The second meeting that we have selected is in the eastern part of the country, and we have selected Siliguri and Darjeeling as the location for the second tourism working group meeting in the eastern part of the country. And that is why we are trying to showcase and highlight the typical features of the world of this region. The delegates will have an exposure to tea estates, tea plucking, and the टॉय ट्रेन पे उनको हम राइड देंगे, उस पर वो उसका अनुभव करेंगे और उस पर निश्चित उनको उसका आनंद मिलेगा। और दोनों डीजल इंजन और स्टीम इंजन का उन्हें आनंद हम देने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब जैसे हमारे टूरिस्ट पुलिस की संकल्पना है, हमने बैठक भी एक लिया और हम सभी राज्यों को हम उनको अनुरोध कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ ज़्यादा पर्यटकों की संख्या है वहाँ स्पेसिफिक पर्यटकों के लिए टूरिस्ट पुलिस स्टेशंस खोलें ताकि उनकी जो कंप्लेंट्स है और वो हो। तो मैं राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से इस संबंध में बात करूँ। और दार्जिलिंग को लेकर, दार्जिलिंग की जो ब्यूटी है उसको लेकर आप लोगों को कुछ हो जाएगा? अभी तो फिलहाल अभी तो हम दार्जिलिंग की ब्यूटी है इसीलिए बैठक यहाँ कर रहे हैं और उसका ज्ञान सब अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को दे रहे हैं और सभी डेलीगेट्स को दे रहे हैं।
थैंक यू। 3 अप्रैल को सारे डेलीगेट्स जो हैं वो घूम स्टेशन से लेके ऊपर बतासिया लूप पे जाएंगे, वहाँ उसी दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे से जाएंगे और फिर दार्जिलिंग स्टेशन तक जाएंगे। तो ये जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है दार्जिलिंग रेलवे का, उसका निश्चित वो उन्हें अनुभव और आनंद मिलेगा। और सर इधर क्या क्या चीज़ आप लोग फोकस कर रहे हैं लोकल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए? प्रमुख रूप से 3 हैं हमारे ये प्राथमिकताएं। एक तो कि टी टूरिज़्म, क्योंकि इस क्षेत्र में टी इंडस्ट्री है। दूसरा एडवेंचर टूरिज़्म, उस पर 2 साइड इवेंट है क्योंकि हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो पास में है। और तीसरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उसके साथ ही साथ मॉल रोड पे एक वो स्थानिक जो कला है, जो हैंडीक्राफ्ट्स है, उसका वो आनंद ले सकेंगे। और यहाँ भी पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा स्टॉल्स तैयार किए जाएंगे जो हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट्स, टेक्सटाइल्स, जो लोकल प्रोडक्ट्स है उसका उनको झलक मिलेगी और वो उसका अनुभव ले सकेंगे। कितना फॉरेन डेलीगेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? टोटली अगर आप G20 कंट्रीज़, इनवाइटी कंट्रीज़ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की संख्या लीजिए तो करीब 60। उसके अलावा पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, उद्योग से, और राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं और केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि हैं। तो कुल मिलाकर 130 डेलीगेट्स आ रहे हैं। सिलीगुड़ी में और दार्जिलिंग में जो बैठक हुई इसमें कितने फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे हैं? इसमें मैंने कहा ना, यहाँ जो सिलीगुड़ी में मेन बैठक होगी तो G20 कंट्रीज़, इनवाइटी कंट्रीज़ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मिला के 60 लोग हैं। और ये जो साइट सीइंग जो भी इवेंट है उसमें वही वो बैठक में किन विषयों पर मूल रूप पर चर्चा होगी कि जो भारत ने 5 प्राथमिकताएं दी हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए पर्यटन को और कोविड के पश्चात रिवाइवल के लिए किन 5 प्राथमिकताओं पर ध्यान देना है। तो एक ग्रीन टूरिज़्म, दूसरा डिजिटलाइजेशन, उसमें IT का ज़्यादा उपयोग हो, तीसरा स्किल डेवलपमेंट कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसमें रोज़गार की संधियाँ हमें देनी है तो युवकों को उसके स्किल्स देना होगा। MSMEs जो छोटे लघु उद्योग हैं उनको कैसे उनका विकास किया जाए ताकि इस क्षेत्र में वो अच्छा लाभ सकें। और अंत में डेस्टिनेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की स्थानिक स्तर पर पर्यटन क्षेत्रों की देखभाल और उनका प्रमोशन के लिए जो डेस्टिनेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन उनको कैसे सक्षम किया जाए ताकि वो ये काम आगे करें। ये पर्यटन क्षेत्रों की देखभाल और उनका प्रमोशन के लिए जो डेस्टिनेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन उनको कैसे सक्षम किया जाए ताकि वो ये काम आगे करें। ये 5 प्राथमिकताओं पर हर देश जो G20 का है अपने प्राथमिकता के अनुसार भर देगा और चर्चा करेगा कि आगे ले जाने पे कैसी नीतियां चाहिए विश्व भर में इन 5 मुद्दों पर। सर फर्स्ट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग तो कल से गुजरात में हुई थी, जी, फरवरी में, और जी, सेकंड यहाँ होगी। जी। फिर थर्ड कब हो गया? 3 मई में होगी, उत्तर भारत में होगी। और हम औपचारिक घोषणा दार्जिलिंग मीटिंग के बाद उस स्थल का करेंगे। और कम्युनिके मिनिस्ट्रियल कम्युनिके वो अंतिम बैठक जो है वर्किंग ग्रुप भी गोवा में होगी और वही गोवा में ही होगी, वो जून में होगी, वो 4th मीटिंग। कल से तो बैठक शुरू हो रही है यहाँ पे, तो डेलीगेट्स कब पहुँचेंगे सर? कल सुबह वो सब करीब सुबह प्रातः 10 बजे बागडोगरा एयरपोर्ट पे पहुँचे। यहाँ मीटिंग कल है ना परसों कल बागडोगरा से यहाँ आएंगे, उसके बाद इस अपना सामान वगैरह रख के वो करसियोंग जाएंगे, वो चाय बकाई बारी टी एस्टेट फैक्ट्री और फिर वहाँ मूनलाइट टी प्लकिंग ये सब का लेकर वो फिर वापस यहाँ आएंगे, रात में यहीं विश्राम करेंगे। और 2 तारीख को दिन भर वो जो एक्चुअल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है वो होगी और 3 तारीख को वो दार्जिलिंग है। सर जो फॉरेन टूरिस्ट जब इंडिया आते हैं पहले उसका चॉइस होता है गोवा, उसके बाद होता है कश्मीर, और कुछ टूरिस्ट जा रहा है गुजरात में। वेस्ट बंगाल में जितना टूरिस्ट स्पॉट है ये लेके आप लोगों का क्या सोच है, कैसे प्रमोट किया जाए? जैसे इस तरह के आयोजन होंगे तो विश्व स्तर पर सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग का नाम जाएगा। इन सब देशों के प्रतिनिधि यहाँ आएंगे, वो अपने देश में अपने सरकारों से, निवेशकों से, जो पर्यटन क्षेत्र के जुड़े हुए उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं उनसे चर्चा करेंगे और जानकारी देंगे, तो निश्चित उसका उपयोग और फ़ायदा होगा। सर पिछले विगत वर्षों में हमने ये देखा है कि जो भी पर्यटक इस क्षेत्र में आते हैं वो अधिकतर सिक्किम की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि दार्जिलिंग जो कि
मूल रूप से पुराना ऐतिहासिक शहर और पर्यावरण के लिए जाना भी जाता है, पहाड़ों की रानी कहते हैं, परंतु वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पा रहा, इसलिए टूरिस्ट उधर जा रहे हैं। तो इधर तो निश्चित इस तरह के बैठक का उपयोग पड़ेगा। जैसे पर्यटन को अगर बढ़ावा मिला तो रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बढ़ोतरी होगी। इसके लिए सरकार की क्या कुछ कार्य योजना इस पर काम चल रहा है? इसके बाद सरकार की तो कार्य योजना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की हर पर्यटक क्षेत्र में है। जहाँ जहाँ वृद्धि होगी तो राज्य सरकार और हम साथ में मिलते हैं। अगर किसी क्षेत्र में ये अनुमान रहा कि पर्यटन क्षेत्र में वृद्धि होने की संभावना है तो निश्चित इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। अगर फॉरेन टूरिस्ट टॉय ट्रेन पे उनको हम राइड देंगे, उस पर